Okay, so now you can hear me? Yes, sir. And Yes, you sir. can see my screen. So everybody can see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So before starting with the actual lecture, I just want to share a story with you. It's not only a story, it's just to give you a lesson also. So because at the moment only 32 people have joined, so just to give them a little bit time so that they can join, I want to share this story. This is the author of this is Mr. Stephen Covey, and that is 90-10 principle. So we are going to discuss the 90-10 principle. If you look at this principle, it can change your life, or at least the way you react to the situations. Actually, 10% of life is made up of what happens to you. And 90% of life is decided by how you react. So I think I believe that everybody is understanding. I need not to translate. So 10% of life is made up of what happens to you, and 90% of life is decided by how you react. What does this mean? We really have no control over 10% of what happens to us. So 10% से ज्यादा हमारा इस चीज पे कंट्रोल नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. हमारा कंट्रोल सिर्फ 10% तक है. We have no control over this 10%. The other 90% is different. You determine the other 90%. How? By your reaction. So you cannot control a red light. However, you can control your reaction. Do not let people fool you. You can control how you react. Let us use an example. मैं आपको एक example देता हूं इसकी. You are having breakfast with your family. Your daughter knocks over a cup of coffee onto your business shirt. You have no control over what has just happened. What happens next will be determined by how you react. You curse, you harshly scold your daughter for knocking the cup over. She breaks down in tears. After scolding her, you turn to your wife and you criticize her for placing the cup too close to the edge of the table. A short verbal battle follows. You storm upstairs and change your shirt. Back downstairs, you find your daughter has been too busy crying to finish her breakfast and getting ready to go to school. She misses the bus. Your spouse must leave immediately for work. You rush to the car and drive your daughter to school. Because you are late, you divide 40 miles per hour in a 30 miles per hour speed limit zone. After a 15-minute delay and throwing $60 traffic fine away, you arrive at school. Your daughter runs into the building without saying goodbye.
After arriving at the office 20 minutes late, you realize you forgot your briefcase. Your day has started terrible. As it continues, it seems to get worse and worse. You look forward to coming home. When you arrive home, you find a small wedge in your relationship with your wife and daughter. Why? Because of how you reacted in the morning. Why did you have a bad day? Did the coffee cause it? Did your daughter cause it? Did the policeman cause it? Did you cause it? The answer is D. You had no control over what happened with the coffee. How you reacted in those 5 seconds is what caused your bad day. Here is what could have and should have happened. आपको करना क्या चाहिए था actually? Coffee splashes over you. Your daughter is about to cry. You gently say, "It's okay, honey. You just need to be more careful next time." Grabbing a towel, you go upstairs and change your shirt. You grab your briefcase and you come back down in time to look through the window and see your child getting on the bus. She turns and waves. You arrive 5 minutes early and cheerfully greet the staff. Notice the difference. 2 different scenarios. Both started the same. Both ended different. Why? Because of how you reacted. You really have no control over 10%. Of what happens in your life, the other 90% was determined by your reaction. So आपका कंट्रोल सिर्फ 10% पे है, बाकी का 90% उस 10% पे डिपेंड करता है कि आप उस 10% में क्या करते हैं. How you react, the other 90% is controlled by that. Now you know the 90-10 principle. This is called as 90-10 principle. Apply it and you will be amazed at the results. You will lose nothing if you try it. The 90-10 principle is incredible. Very few know and apply this principle. The result, you will see it by yourself. Millions of people are suffering from undeserved stress, trials, problems, and headaches. We all must understand and apply the 90-10 principle. It can change your life. Enjoy it. It only takes willpower to give ourselves permission to make the experience. Absolutely everything we do, give, say, or even think, it is like a boomerang. It will come back to us. जैसे रबर की गेंद होती है ना, वो आप दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आती है. इसी तरह से हमारा रिएक्शन होता है. If we want to receive, we need to learn to give first. Maybe we will end with our hands empty, but our heart will be filled with love. And those who love life have that feeling marked in their hearts. So that was all, just to give you a little bit time. So the message is, you have control over only 10%. So try to manage that 10% so that you can then have a better 90%.
So now we go to our actual job. So today we are going to discuss microbe interactions. Can you see my screen? Yes, yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, So sir. last time we discussed the plant microbe interactions, and today we are going to discuss how the microbes, they interact with each other. And if you remember, I did tell you that microbe and microorganisms is the same word, don't get confused. So I told you that the soil contains millions of microorganisms in it. And those microorganisms, they interact with each other. How they interact? Those interactions may be neutral. That is called as neutralism. Those may be positive. And if we say the positive interactions, those are commensalism, synergism, and mutualism. I'll discuss each and every one. Then there may be the negative interactions. Those are predation, competition, amensalism, and parasitism. So the interactions, even in my very first lecture, I told you that the interactions between the plants and the microorganisms, and the interactions even between the microorganisms, may be neutral, positive, or negative. So we discuss these one by one. But before discussing that, you must take it for granted that these interactions cannot be rigidly defined. You cannot draw a very hard and fast line that, okay, this is synergism, this is competition. There may be overlapping at many places. For example, the specificity of the organisms in mutualistic association may vary from being highly specific, for example, legume rhizobium symbiosis, to promiscuous, some mycorrhizal symbiosis. It means मैंने म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की एग्जांपल दी है कि ये हाईली स्पेसिफिक भी हो सकती है कि एक खास राइजोबियम एक खास लेग्यूम के साथ ही मिल सकता है, और ये भी हो सकता है जैसे माइकोराइजी की एग्जांपल है कि एक माइकोराइजी बहुत सी किस्म के प्लांट्स के साथ मिल सके. सो ये स्पेसिफिक भी हो सकती है और ब्रॉडर भी हो सकती है. अब हम बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की. There is actually neutralism, neutral लफ्ज़ से क्लियर है. There is no physiological effect between the two populations. Both the partners are independent and not affected by each other. So वो जो इकोसिस्टम है, वो जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो दो पार्टनर्स हैं, जो दो पॉपुलेशंस हैं, उन्हें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं वहां पे. This is called as neutralism. The second one is commensalism. अब commensalism क्या है? अब हम beneficial interactions की बातें करनी शुरू कर रहे हैं. So commensalism क्या है? It is a unidirectional relationship between populations in which one population benefits and the other one is unaffected. So if there are two populations A and B, B is getting benefit of the interaction, but A is unaffected, right? This is called as commensalism, a unidirectional relationship between two populations, right? What may be its example? It is illustrated by an organism
removing a compound that hinders growth of another organism. For example, the respiratory activity of aerobic soil microorganisms may lower the oxygen concentration sufficiently to allow an anaerobic process to occur in close proximity. मैंने ये एग्जांपल दी है कि फर्ज करें दो किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एक एरोबिक है, एक एनारोबिक है। आप समझते हैं कि एनारोबिक जो है वो तब ही ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगी या एटलीस्ट कम होगी। उसके मुकाबले में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो उसी वक्त ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन होगी, जबकि जो एनारोबिक है वो उस वक्त ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगी। तो अगर दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे इन्वायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है उसको यूज कर लेता है, लिहाजा वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक है वो भी वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो उसका फायदा हो जाता है। सो ए को कुछ नहीं होता, जो ए पॉपुलेशन थी जो एरोबिक थी उसको कुछ नहीं होता, वो अपना नॉर्मली ग्रो कर रही है, वहां से उसके ग्रो करने की वजह से ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है और इस चीज की बेनिफिट दूसरी पॉपुलेशन को मिलती है। सो यही हमने कमेंसलिज्म को डिफाइन किया था कि एक पॉपुलेशन उससे बेनिफिट लेती है जबकि दूसरी पॉपुलेशन को उससे कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। सो commensalism is illustrated by an organism removing a compound that hinders the growth of another organism. इसकी मैंने मिसाल दी है आपको ऑक्सीजन की कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वहां पे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकेगा। सो इसलिए जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन के जरिए वहां से ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, लिहाजा एनारोबिक फिर ग्रो कर सकेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ammonia oxidizing bacteria, they transform their energy source ammonia into a waste product nitrite, which is a specific substrate of nitrite oxidizing bacteria. So एक सॉइल है उसमें अमोनिया पड़ी है, उसमें अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी हैं और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी हैं। अब जब अमोनिया वहां पे है तो वहां पे अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे क्योंकि वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके वहां से अपनी एनर्जी लेंगे, लेकिन नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेंगे इसलिए कि वहां पे नाइट्राइट मौजूद नहीं है। सो फिर अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के लिए अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और जब अमोनिया ऑक्सीडाइज होती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ये नाइट्राइट जो है जो दूसरे बैक्टीरिया वहां पे पड़े हैं नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, उनके काम आ जाती है, वो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया थे वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम की बेनिफिट नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को हो गई। सो one population is unaffected while the other population is getting benefit of that. This relationship is called as commensalism. Clear to everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so the next positive interaction is synergism. Synergism आपने फर्टिलिटी के कोर्स में भी बड़ा कॉमनली सुना होगा जी, synergism है जी, इनमें synergistic interaction है जी, आप ये लफ्ज सुनते हैं। So what is synergism? Synergism indicates that both populations benefit from the relationship, but the association is not obligatory. Both populations are capable of surviving independently. So synergism क्या है कि दोनों populations एक दूसरे से बेनिफिट लेती हैं, लेकिन
इसमें खास चीज याद रखने वाली ये है कि ये एसोसिएशन ऑब्लिगेटरी नहीं है। ये अलग-अलग भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो दोनों का एक दूसरे को फायदा होता है। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पॉपुलेशंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टनर्स। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल क्या है? The examples of synergism can be found in flooded soils, where many methane producing and sulfate reducing bacteria obtain their energy from acetate, hydrogen gas or both. So जो flooded soils होती हैं वहां पे मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम मीथेनोजेंस कहते हैं, और सल्फेट को रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जो सल्फेट SO4 को रिड्यूस करके सल्फाइड में चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में। ठीक है, सो उसमें जो मीथेन प्रोड्यूसिंग और सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया दोनों मौजूद होते हैं, और वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम एसीटेट, हाइड्रोजन गैस और बोथ। और ये एसीटेट, हाइड्रोजन गैस और बोथ ये दोनों आती कहाँ से हैं? एसीटेट और हाइड्रोजन गैस जो दोनों ने यूज करनी है, मीथेन प्रोड्यूसिंग ने भी और सल्फेट रिड्यूसिंग ने भी, ये कहाँ से आती है? तो अंडर द सेम कंडीशंस, जिस वक्त वहां पे मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मौजूद हैं और वहां पे सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया मौजूद हैं, अंडर द सेम कंडीशंस वहां पे फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं? दे मेटाबोलाइज शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स टू जनरेट एनर्जी एंड प्रोड्यूस एसीटेट एंड हाइड्रोजन गैस एज बाई प्रोडक्ट। सो वहां पे फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? they metabolize the sugars, fatty acids and amino acids to generate energy। ये अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए शुगर, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं, और बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट के तौर पे एसीटेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एसीटेट और हाइड्रोजन गैस, वो जो मैंने पहले बैक्टीरिया का जिक्र किया है, मीथेन प्रोड्यूसिंग और सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो एनर्जी के तौर पे यूज कर लेते हैं। सो इस तरह से दोनों के लिए बेनिफिट हो जाती है। जो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया हैं उनको शुगर्स, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, और जो सल्फेट रिड्यूसिंग और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनको एसीटेट और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। Evidence has accumulated that commensalistic or synergistic associations of microorganisms are required to completely mineralize some soil applied chemicals such as pesticides and hazardous waste chemicals। मैंने ये बात की है कि ये साबित हो गया है कि जमीन में हम जो भी केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स या कोई भी हैजार्डस वेस्ट हम सॉइल में जो डालते हैं, तो वो उस वक्त तक कंप्लीटली मिनरलाइज नहीं हो सकता। I believe you know the mineralization. Mineralization means conversion from organic to inorganic form. So वो उस वक्त तक डिग्रेड नहीं होता, उस वक्त तक मिनरलाइज नहीं होता जब तक कमेंसलिज्म और साइनर्जिज्म दोनों एसोसिएशंस एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, ये हो सकता है कि सिर्फ एक इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से एक कंपाउंड बन रहा हो, लेकिन अगर उस कंपाउंड को अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, तो उस केमिकल की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती है।
So for mineralization of any hazardous waste in the soil, both the commensalistic and synergistic associations are important. ठीक है, so इसी वजह से आजकल जो एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू यूज ए माइक्रोबियल कंसोर्शिया. कंसोर्शिया मीन वो माइक्रो, एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव टुगेदर, ठीक है, विच हैव सम रिलेशनशिप विद ईच अदर. सो आजकल लोग कहते हैं कि अगर आपने बायो फर्टिलाइजर भी बनानी है तो आप ऐसी बनाएं जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बजाय एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, okay, so the next interaction is mutualism or symbiosis. Mutualism is an obligatory interrelationship between two populations that benefits both of them. मैंने जब पिछली बात की थी तो मैंने आपको क्लियर किया था वहां पे कि साइनर्जिज्म की बात करते हुए कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं होती. मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ था नॉट ऑब्लिगेटरी, वेयर एज mutualism or symbiosis is an obligatory interrelationship between two populations that benefits both of them. ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों मौजूद होंगे तो दोनों को फायदा होगा. ऐसे नहीं होता कि एक को फायदा हो और दूसरे को कोई फायदा ना हो. ये म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस का मतलब ये है, खासतौर पे सिम्बायोसिस तो आपने बहुत कॉमनली यूज किया है लफ्ज. सो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस मीन it is mutually beneficial interrelationship between the two populations, and it is an obligatory relationship, means compulsory है कि वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो. Okay, this association usually occurs between specific organisms rather than between populations. So आमतौर पे ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है बजाय पॉपुलेशंस के दरमियान में. I believe you understand the difference between organism and population. Population means more than one organisms are there, whereas organism is an individual organism. So एक organism दूसरे organism के साथ कैसे interaction करता है. So ये जो symbiosis है ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है, पॉपुलेशंस के दरमियान नहीं होती है. पहली जो एग्जांपल थी दैट वाज बिटवीन द पॉपुलेशंस. ठीक है, सो बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन. द रिलेशनशिप कैन बी हाईली स्पेशलाइज्ड बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स एंड अलाउ देम टू थ्राइव इन द हैबिटेट्स that neither could occupy alone. So ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है और उस रिलेशनशिप में, उस हैबिटेट में, उस एनवायरनमेंट में दोनों इक्वली गुड ग्रो करते हैं जो दोनों के लिए स्पेशलाइज्ड हो. ठीक है, द रिलेशनशिप कैन बी हाईली स्पेशलाइज्ड बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स एंड अलाउ देम टू थ्राइव इन हैबिटेट्स that neither could occupy alone. अगर उस इन्वायरमेंट में अगर एक अकेला ऑर्गेनिज्म हो तो वो ग्रो नहीं करेगा. इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा नोड्यूल्स की. लेग्यूम्स में जो नोड्यूल्स बनते हैं उन नोड्यूल्स में एक खास राइजोबियम ही मौजूद होता है. आमतौर पे प्लांट लेग्यूम्स में जो नोड्यूल बनाने के लिए एक खास राइजोबियम चाहिए होता है. सो
सबसे पहले क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्लांट एक खास सिग्नल रिलीज करता है, राइजोबियम एक खास सिग्नल रिलीज करता है। दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दोनों स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पे हम दोनों ग्रो कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो अब अगर नोड्यूल नहीं है तो उससे रेलेवेंट राइजोबियम वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। अगर राइजोबियम नहीं है तो उससे रेलेवेंट प्लांट पे नोड्यूल्स नहीं बन सकते। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अदरवाइज मैं अभी आपको एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी दूंगा। The metabolic activities of the partners are often modified in the association, and occasionally the partners cannot grow in the absence of the association. ठीक है। सो जब दोनों एसोसिएशन में ग्रो कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उस वक्त उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थोड़ी चेंज हो जाती हैं और बहुत कम होता है। इट इज वेरी ओकेजनल कि the partners cannot grow in the absence of association, कि वो एसोसिएशन ना हो तो वो बिल्कुल ग्रो ही ना कर सकें। ग्रो जरूर कर लेंगे लेकिन वो वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे जो एसोसिएशन में करनी थी उन्होंने। Although plants are the primary source of reduced carbon for the soil microbial community, plant growth is often limited by the availability of nitrogen and phosphorus. मिसाल दी है आपको कि प्लांट में plants are the primary source of reduced carbon for soil microbial community. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज चाहिए, रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए और वो कार्बन से बनते हैं। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है जो रिड्यूस्ड कंपाउंड है, उसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है जो यूज होती है। लेकिन प्लांट को इनके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी जरूरत होती है। ठीक है। Many plants have solved this problem by forming associations with various soil microorganisms. So बहुत सारे प्लांट्स ने ये वाला इशू फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन बना के सॉल्व किया है। ठीक है। कैसे? Certain fungi invade plant roots and form an elaborate network of hyphae that penetrate either between or into the cortical cells and also into the soil environment. These associations are collectively referred to as mycorrhizae. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो प्लांट को नाइट्रोजन और फास्फोरस भी चाहिए, तो वो कार्बन तो पौधे से ले रहा है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस कहाँ से ले? तो इसके लिए वो ये करता है कि वो माइकोराइजी के साथ एसोसिएशन बना लेता है। ठीक है। और वो माइकोराइजी उसको मॉइस्चर और खास तौर पे फास्फोरस प्रोवाइड कर देती है। इन माइकोराइजी द फंगस बेनिफिट्स, फंगस को क्या बेनिफिट होती है? इट बेनिफिट्स बाय ऑब्टेनिंग ए रेडीली अवेलेबल सप्लाई ऑफ रिड्यूस्ड कार्बन फ्रॉम द प्लांट। ये प्लांट से रिड्यूस्ड कार्बन ले लेती है। सो पौधे से कार्बन ले रही है और बदले में उसको फास्फोरस दे रही है। Various mechanisms have been proposed to explain how the fungus benefits the plant. फंगस पौधे को कैसे बेनिफिट करती है? तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। The mycorrhizal roots enhance the uptake of mineral nutrient and water from soil because the external mycelia explore a greater volume of soil than do the non-mycorrhizal root. ये मैं इस पे एम्फिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी जब हम प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे थे उस वक्त इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आगे जाके हम इस पे एक इंडिपेंडेंट चैप्टर भी पढ़ेंगे। The fungus sequesters mineral nutrients at low concentrations more efficiently than does the non-mycorrhizal root. अगर non-mycorrhizal root है तो वो कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी, जबकि उसके मुकाबले में अगर mycorrhizal root है तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकती है। So the fungal hyphae produce various hydrolytic enzymes
that release nitrogen and phosphorus from organic compounds that are otherwise unavailable to the plants. अब दूसरी बेनिफिट क्या है माइक्रोराइजी की कि ये सर्टन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करती है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वहां पे मौजूद सर्टन नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करती है और वो पौधे के लिए अवेलेबल हो जाती हैं, अदरवाइज पौधा उनको यूज नहीं कर सकता। Then the next interaction is competition. अब हम आ गए हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस पे। Competition occurs when two populations are striving for the same resource of nutrients or the habitat. So जब दो populations एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, जैसे वो आपने वो क्या होती है म्यूजिकल चेयर गेम देखी है कि एंड पे क्या होता है, एक कुर्सी होती है और दो बंदे होते हैं, तो दोनों एक कुर्सी के लिए compete कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जब दो पॉपुलेशन एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही होती हैं and one out competes the other for the site's resource, और एक जो है दूसरी को आउट compete कर देती है, तो उस वक्त हम कहते हैं जी कि ये कंपटीशन है। जो वो जैसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वहां पे ज्यादा फिट होता है, जो ज्यादा इफेक्टिवली दूसरे को आउट compete कर देता है, वो ग्रो कर जाता है, और जो compete नहीं कर सकता है वो वहां पे ग्रो नहीं करता है। नॉर्मली जब हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं या इनोकुलेशन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, हम यही कर रहे होते हैं कि हम कम्पिटिटिव स्ट्रेन्स की पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा रहे होते हैं ताकि वो इफेक्टिवली जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसके साथ compete कर सके और उसको आउट compete करके खुद ग्रो कर सके। So this is competition. In this interaction, both populations compete for the same limited resource and have a negative effect on each other. ठीक है, जो compete करेगा बेटर वो बेटर, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर है, जो ज्यादा बेटर compete कर लेगा वो बेटर मॉइस्चर ले लेगा, जो बेटर compete नहीं करेगा उसको कम मॉइस्चर मिलेगी। तो अगर कंपटीशन ना हो तो एक ही अगर वहां पे हो तो उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। सो कंपटीशन की वजह से दोनों को कम चीज मिलती है। फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Can anybody unmute his mic and tell me what are the heterotrophic microorganisms? Sir, organism which cannot synthesize their own food. It depends upon the other. No. Heterotrophic microorganisms. जो ऑर्गेनिक कार्बन को एज फूड इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक तो हो गया ऑर्गेनिक कार्बन, और एनर्जी देखें, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफाइन करना होता है हमें दो चीजें आमतौर पे देखनी चाहिए, एक उसका कार्बन सोर्स क्या है, दूसरा उसका एनर्जी सोर्स क्या है। सो हेटेरोट्रॉफिक वो हैं, ह्यूमस से इसको याद रखें, हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन से लेते हैं, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। सो उनको हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी टर्म क्या होती है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होती हैं, जो अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेंगे और एनर्जी किससे लेंगे, सनलाइट से लेंगे, तो उनको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सो ये वैसी बात आ गई। असल में कहना यहाँ पे ये चाहता था, मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो तो बोथ विल compete फॉर अमोनियम। अमोनियम मौजूद है, इट इज ऑर्गेनिक, हेटेरोट्रॉफिक है,
और अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग है। अब अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग को भी अमोनिया चाहिए, हेटेरोट्रॉफिक को भी अमोनिया चाहिए, दोनों में कंपटीशन हो जाता है। आप ऐसे ही समझ लिया, आपके लिए एक इजी एग्जांपल देता हूं कि आपके पास, मुझे पता है कि आपके मैसेज में नॉर्मली वेंसडे वाले दिन रोस्ट होता है, तो अब एक रोस्ट का पीस है और अगर तो 2 लोग हैं वहां पे बैठे हुए तो उनमें कंपटीशन होगा, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 हैं और 2 ही बंदे हैं तो दोनों को पूरा पूरा पीस मिल जाएगा, या एक पीस है और एक ही बंदा है तो सारे का सारा उसको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द कंपटीशन हैज द नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल तो आपको बहुत जल्दी समझ आई होगी वैसे। So the heterotrophs need ammonium to make amino acids and proteins, and ammonia oxidizing bacteria need ammonium primarily as energy source. दोनों को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए दोनों को अमोनियम। सो इस वजह से दोनों में कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। If ammonium in limiting quantities, neither population will grow to the extent that it would in the absence of competition. So अगर अमोनियम नहीं होगी तो दोनों पॉपुलेशंस ही उतना ग्रो नहीं कर सकेंगी जितना कि ये कंपटीशन ना होता तो इन्होंने ग्रो करना था, ठीक है। So if ammonium is in limiting quantities, neither population would grow to the extent that it would in the absence of competition. सो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए या तो आप ये है, जैसे मैंने म्यूजिकल चेयर की एग्जांपल दी थी आपको, 2 बंदे हैं तो 2 कुर्सियां होंगी तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 बंदे 1 कुर्सी होगी तो कंपटीशन होगा, एक ही बंदे को कुर्सी मिलेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। इन अनदर एग्जांपल ऑफ कंपटीशन, different strains of a symbiosis forming species of Rhizobium compete with each other to establish a symbiosis with a leguminous plant. So एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि राइजोबियम की डिफरेंट किस्में होती हैं। आपने ये बीएससी की क्लास में पढ़ा है कि वो राइजोबियम जो फॉर एग्जांपल ग्रैम में नोड्यूलेशन करते हैं वो लेंटिल में नहीं कर सकते, जो लेंटिल में करते हैं वो मूंग बीन में नहीं कर सकते। हर लेग्यूम के लिए अलग राइजोबियम की स्ट्रेन होती है, ठीक है। इवन अगर आप एक ही प्लांट भी ले लें, अगर आपसे लेंटिल की बात कर लें तो लेंटिल में भी राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो नोड्यूल्स बनाती है, लेकिन इसकी भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, कुछ एफिशिएंट होती हैं, कुछ इनएफिशिएंट होती हैं। सो इन अनदर एग्जांपल ऑफ कंपटीशन, जो मैं ये मिसाल दे रहा हूं, अगर उसमें ये हो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स हों राइजोबियम की, तो वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू कर देती हैं और वहां पे फिर इतना ज्यादा इफेक्टिव सिम्बायोसिस नहीं डेवलप हो सकता जितना कि अगर एक ही इफेक्टिव स्ट्रेन वहां पे मौजूद होती, ठीक है। सो ये भी एक एग्जांपल है इस चीज की। In many cases, the number of root nodules formed by the competing strains will be less than if only one strain were present in the soil. जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर बहुत सारी स्ट्रेन्स मौजूद हैं तो वो शायद उतनी इफेक्टिव नोड्यूलेशन ना कर सकें जितनी अगर एक ही स्ट्रेन मौजूद होगी, क्योंकि उनकी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपस के कंपटीशन में लग जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अभी देखें हमारा एक पीरियड तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आइंदा से मैं आधे घंटे के बाद किसी को एडमिट नहीं किया करूंगा, ठीक है। सो मैं आपको आधा घंटा देता हूं कि आधे घंटे तक आप ज्वाइन कर लिया करें, आधे घंटे के बाद मैं आपको अलाउ नहीं किया करूंगा कि आप करें, क्योंकि इस तरह मुझे यही काम करते रहना पड़ता है कि नए स्टूडेंट्स को एडमिट करता रहूं। सो प्लीज ट्राई कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लिया करें, अदरवाइज फिर बाद में आपको वो अपलोड तो हम कर ही देते हैं लेक्चर, वहां से देख लिया करें।
आपका सीआर सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। आपने मुझे अटेंडेंस भेजनी है बाद में। ओके सर। और एक और बात भी, चलें बाय द वे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूँ दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आप पेपर में मेरा नाम नहीं लिखेंगे, नवीद साहब का नाम ही लिखेंगे। टेक्निकली कोर्स आपको नवीद साहब पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा और कुछ चैप्टर्स नवीद साहब पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल सारा वो ही करवाएंगे, ठीक है। सो जब आपने पेपर देना है फाइनल का, वहां पे आपने लिखना होता है कि कोर्स किसने पढ़ाया है आपको, तो वहां पे नवीद साहब ही आपके कोर्स के इंचार्ज होंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आज या कल में हो जाएगी, ठीक है। सो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑफ द रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ। Okay, so we continue with our job. Furthermore, if the more competitive strain is less effective at fixing dinitrogen, then the plant does not grow as vigorously as it would if all nodules were occupied by the more effective strains. अगर ऐसे हो जाए, जैसे मैंने वो आपको पहले मिसाल दी थी रोस्ट की, कि somehow or the other दो बंदों में कंपटीशन हो जाए रोस्ट में, से उमर का और अली रिजवान का कंपटीशन हो जाता है कि इन्होंने रोस्ट का एक पीस है वो इन्होंने लेना है। अब somehow or the other अली रिजवान जीत जाता है और ये वो जो पीस है वो ले लेता है उमर से, लेकिन अली रिजवान को इतनी भूख ही नहीं है कि ये वो पूरा पीस खा सके। सो फिर इस केस में इशू होगा कि वो प्रॉपर एनर्जी उसको नहीं मिल सकेगी। लिहाजा इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, इसी तरह से नाइट्रोजन। आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके, यहाँ पे लाइट चले गई है लेकिन अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा। सो यही मिसाल दी है मैंने कि नोड्यूल्स में अगर तो जो कम्पिटिटिव नोड्यूल है जिसने नोड्यूलेशन की है, अगर वो इफेक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर है तो प्लांट को ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगी, ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो वो ज्यादा क्विकली ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो कम्पिटिटिव तो है, वो अंदर तो चला गया है प्लांट के, लेकिन वहां पे ज्यादा नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर पा रहा, तो फिर उस केस में वो नाइट्रोजन पौधे को कम नाइट्रोजन मिलेगी, लिहाजा वो कम नाइट्रोजन फिक्स करेगा, उसकी कम ग्रोथ होगी, ठीक है। तो एक और नेगेटिव इंटरेक्शन है एंटागोनिज्म। सो एंटागोनिज्म occurs when one population produces a substrate inhibitory to another population। ये आप फर्टिलिटी में भी पढ़ते हैं कि एक जो न्यूट्रिएंट, एक जो सब्सटेंस है वो कोई ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है जो दूसरे के लिए हार्मफुल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया एक ऐसा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर देता है जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है, या एक फंजाई है या एक एक्टिनोमाइसीट्स हैं, वो एक ऐसा वो एक ऐसा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर देते हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदेह है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म, कि एक पॉपुलेशन कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर दे जो दूसरी पॉपुलेशन को सप्रेस कर रही हो। इसकी मिसाल एंटीबायोटिक्स की है कि फंजाई ऐसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर दें जो फिर दूसरे बैक्टीरिया को वहां पे सप्रेस कर दें, इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। द थर्ड वन इज पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट, यू नो कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों पे रहते हैं, ठीक है। आप में भी बहुत सारे दोस्त दूसरे दोस्तों पे पैरासाइट होते हैं। So the parasite population is benefited and the host population is harmed, ठीक है।
जो होस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देखें, ये होस्ट है, ये पैरासाइट है। पैरासाइट जब होस्ट पे आता है तो पैरासाइट को तो फायदा होता है, लेकिन जो होस्ट है उसका नुकसान होता है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल देखी होगी आमतौर पे, ये पीवीसी बेल सी होती है, वो आप लोग उठा के कहीं से और किसी दूसरे की बाड़ पे फेंक देते हैं तो वो वहां पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, वो पैरासाइट ही है। तो आप पैरासाइट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। पैरासाइट्स जो हैं उनका तो फायदा हो रहा होता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसका नुकसान हो रहा होता है। और एक और नेगेटिव इंटरेक्शन है प्रीडेशन। प्रीडेशन इंग्लिश का लफ्ज है, इज अ वाइड स्प्रेड फिनोमिनन वेयर द प्रीडेटर एनगल्फ्स और अटैक्स द प्रे, जिसमें प्रीडेटर प्रे पे अटैक करता है और उसको खा जाता है। वैसे ही द प्रे कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द प्रीडेटर। जो शिकार है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एंड दिस नॉर्मली रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द प्रे। जैसे ये प्रीडेटर है, ये प्रे है, प्रीडेटर आया, उस प्रीडेटर ने अल्टीमेटली प्रे को खत्म कर दिया वहां से। ठीक है, soil animals such as nematodes and protozoa, they feed on bacteria and fungi and reduce their number. So soil में nematodes भी होते हैं और प्रोटोजोआ भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई पे फीड करते हैं, लिहाजा उनकी पॉपुलेशन वहां पे ये कम कर देते हैं। This activity is an essential part of soil ecosystem function. Although such activity is detrimental to the size of the prey population, the activity of the survivors can be stimulated because the predators release nutrients during their feeding activities. मैंने ये बात की है। Although नीमाटोड्स या प्रोटोजोआ जब बैक्टीरिया या फंजाई को खा जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बैक्टीरिया या फंजाई जो होते हैं ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स या न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज कर रहे होते हैं जो बैक्टीरिया या फंजाई खाए जाने से बच जाते हैं, उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और वो तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनका फायदा भी हो जाता है कि प्रीडेटर्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग देयर फीडिंग एक्टिविटीज, जिनको वो बच जाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई यूज कर लेते हैं, और लिहाजा वो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस कायम रहता है। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज अमेंसलिज्म। पहले हमने कमेंसलिज्म पढ़ा था, अब मैं बात कर रहा हूं अमेंसलिज्म की। और ज़हन में रखें, मैं पेपर में ऐसे ही पूछता हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज डिफाइन कमेंसलिज्म। मैं कहूंगा डिफरेंशिएट बिटवीन अमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म। तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वन पॉपुलेशन गेन्स ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर एन अदर बाय प्रोड्यूसिंग ए ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस। एक पॉपुलेशन क्या करती है, दूसरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देती है इस तरह से कि कोई ऐसा ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देती है जो दूसरे को क्विकली ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, इसकी वजह से वो जो क्विकली ग्रो नहीं कर रहा, जो वैसे ही कमजोर रह जाता है, वो फिर प्रॉपरली compete नहीं कर पाता, लिहाजा उसको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, एक पॉपुलेशन जो है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है इस तरह से कि वो कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जो सब्सटेंस दूसरे को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से उनका आपस का कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, दिस इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म। Many fungi and bacteria have the potential to produce antimicrobial growth substances that may serve to inhibit other nearby organisms.
बहुत से फंजाई और बैक्टीरिया हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते। इस तरह से दे सर्व टू इनहिबिट अदर नियर बाय ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से वो नजदीक उनके जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको competitively grow नहीं करने देते। When a menselism occurs in the rhizosphere, the growth of soil-borne plant pathogens can be retarded and plant diseases lowered. This phenomenon is known as biological control. ठीक है? So जैसे अगर आपको याद हो हमने साइड्रोफोर की एग्जांपल डिस्कस की थी। So जिस वक्त राइजोस्फीयर में मेंसेलिज्म हो रहा हो, मींस कोई ऐसा ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस रिलीज कर रहा हो जो वहां पे मौजूद पैथोजेंस की ग्रोथ को सुप्रेस कर रहा हो, तो ये जो प्रोसेस है या जो डिजीज वहां पे सुप्रेस हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कुछ बैक्टीरिया साइड्रोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो साइड्रोफोर्स क्या करते हैं, पैथोजेंस के लिए आयरन का कंपटीशन होता है, वो पैथोजन को आयरन नहीं मिलने देते, जिसकी वजह से पैथोजन खत्म हो जाते हैं और वो डिजीज जो वो काज कर रहे होते हैं वो कंट्रोल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है। Menselism can also be caused by more general effects of metabolism. ये जनरल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म के, कि वो क्या कर रहे हैं उस वक्त, उनकी वजह से भी हो सकता है कि दूसरे को नुकसान हो रहा हो। कोई ना कोई वो ऐसा मेटाबॉलिक इफेक्ट कर रहे हैं क्रिएट जिसकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज सॉइल एसिडिफिकेशन which may adversely affect acid sensitive Streptomyces species in their immediate vicinity. कि जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहां पे pH लो कर देते हैं ड्यू टू एसिडिफिकेशन। जब pH लो हो जाती है तो दैट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज एसिड सेंसिटिव हैं, सो एसिड सेंसिटिविटी की वजह से इमीडिएट विसिनिटी में स्ट्रेप्टोमाइसीज फिर ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है। सो ये सारी इंटरैक्शंस जो हमने डिस्कस की हैं, इन सब को अगर हम सम अप करना चाहें तो हम इस टेबल में सम अप कर सकते हैं और आप रिकॉल कर सकते हैं सारे को। सो जो जीरो होगा इसका मतलब होगा कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव इफेक्ट है, प्लस का मतलब है पॉजिटिव इफेक्ट है, और माइनस का मतलब है नेगेटिव इफेक्ट है। सो इंटरेक्शन का नाम क्या है, पॉपुलेशन ए को क्या होता है और पॉपुलेशन बी को क्या होता है। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, ना पॉपुलेशन ए को कुछ होता है ना पॉपुलेशन बी को कुछ होता है, दोनों ही अनअफेक्टेड रहती हैं। ये है न्यूट्रलिज्म। दूसरा था कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हमने कहा था पॉपुलेशन ए को कुछ नहीं होता है लेकिन पॉपुलेशन बी को बेनिफिट होती है। फिर हमने कहा था साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म में हमने कहा था जी दोनों को बेनिफिट होती है। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिट होता है इसका। और फिर था म्यूचुअलिज्म, इसमें भी हमने कहा था कि दोनों की बेनिफिट होती है। एक में हमने कहा था कि ये ऑब्लिगेटरी है, एक में हमने कहा था ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। और जो कंपटीशन है उसमें पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होता है कि अगर वो कंपटीशन ना होता, एक ही पॉपुलेशन होती तो वो ज्यादा ग्रो करती। कंपटीशन की वजह से दोनों ही कम ग्रो करती हैं। मेंसलिज्म, पॉपुलेशन ए या तो अफेक्ट ही नहीं होती या पॉजिटिवली अफेक्ट होती है, और जो पॉपुलेशन बी है वो बहरहाल नेगेटिवली इफेक्ट होती है। और जो पैरासिटिज्म है, पॉपुलेशन ए जो है, जो पैरासाइट है, इट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड whereas population B is negatively affected. प्रीडेशन जो है
जो आपका प्रीडेटर होता है, पॉपुलेशन ए जो है दैट इज पॉजिटिवली इफेक्टेड, whereas population B is negatively affected. So this is all about the interactions. अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले इससे पहले कि मैं अगला टॉपिक शुरू करूं. Anybody can unmute his mic and ask the question. सर जी, एमेंजलिज्म है, इसमें अभी हम आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे. सर जो हमने एमेंजलिज्म पढ़ा है और इसमें हमने देखा है कि जो ए ऑर्गेनिज्म है उस पे या तो इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नो इफेक्ट होगा, तो नो इफेक्ट में क्या एग्जांपल होगी? मैंने नो इफेक्ट की आपको एग्जांपल्स दी हैं. आप एमेंशलिज्म की बात कर रही हैं. मैं आपको एक मिनट है जरा, एमेंशलिज्म पूछना चाह रही हैं आप? ओके, यस सर. देखें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जरा वो ही उसी पे जाना चाह रहा हूं. Commensalism, synergism. जी, ये देखें, मैं चाह रहा था मैं वही एग्जांपल दूं आपको. अब देखें, ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि व्हेन मेंशलिज्म occurs in the rhizosphere, the growth of soil-borne plant pathogens can be retarded and plant disease lowered. This phenomenon is known as biological control. हमने इसको डिफाइन किया था, मैं इसलिए ये स्लाइड ढूंढ के लेके आया हूं कि one population gains a competitive advantage over another by producing a growth inhibiting substance. अब इस एग्जांपल को अब देखें. इस एग्जांपल में मैंने साइड्रोफोर की एग्जांपल दी थी कि एक बैक्टीरिया है वो साइड्रोफोर प्रोड्यूस करता है. साइड्रोफोर क्या है? वो वहां पे जितनी आयरन है उसको किलेट कर लेते हैं. अब वो जो किलेटेड आयरन है, वो जो पैथोजन है उसको नहीं मिल पाता है, उसको कंपिटिटिव डिसएडवांटेज हो गया, जबकि जिसने वो प्रोड्यूस किया है उसको वो मिल जाता है, लिहाजा उसको कंपिटिटिव एडवांटेज हो गया. ठीक है. सो इस तरह से वो जिसको डिसएडवांटेज हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल की वजह से, उसको हम कह देते हैं जी कि उसका नुकसान हो जाता है. या दूसरे लफ्जों में, ये जो एग्जांपल मैंने दूसरी दी थी कि many fungi and bacteria have the potential to produce antimicrobial growth substances that may serve to inhibit other nearby organism. वो क्या करते हैं? वो अपना ग्रो कर रहे हैं वहां पे और वो कुछ सब्सटेंसेस अपने मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. उन सब्सटेंसेस की वजह से जो नियर बाई ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ वहां पे नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, जिसकी वजह से फंजाई और बैक्टीरिया का उनके साथ जो कंपटीशन होना था वो नहीं हो पाता है, लिहाजा उनको कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाता है फंजाई को. मैंने यहाँ पे आपको रोस्ट की एग्जांपल भी दी थी कि एक बंदा दूसरे को इतने इस काबिल ही नहीं छोड़ता है, इतना कमजोर कर दे, उसके दांत निकाल देता है सारे, लेकिन पीस उसको पकड़ा देता है, वो पीस खा ही नहीं सकेगा. तो दिस इज कंपिटिटिव डिसएडवांटेज. ठीक है. दूसरे को जिसके दांत है उसको एडवांटेज हो जाएगा कि वो तो खा लेगा बड़े आराम से. जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैंने दूसरी स्लाइड शेयर करनी है, इसको कैसे बंद करूं? यहाँ से करना. Okay, now if you have no more question, then I want to share another screen. तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं अब. So you can see the screen? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. Yes, sir. चैप्टर
चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया का। नाम आपने सुना है, मैंने पहले चैप्टर में इसका बड़ा जिक्र किया था बार बार, PGPR के नाम से, कि ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया होते हैं। हमने कहा था ये राइजोस्फीयर में, उमर आर यू अराउंड? यस सर। सो इट मीन्स यू नो, हमने पहले चैप्टर में कहा था कि जो प्लांट रूट्स होती हैं उनके गिर्द हमेशा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और राइजोबैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते, राइजोस्फीयर में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने कहा था कि वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त मैंने डिफाइन किया था कि ऐसे बैक्टीरिया जो राइजोस्फीयर में होते हैं और वो पौधे की ग्रोथ इंप्रूव करते हैं, उनको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सो अब हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी, यू कैन से, emerging topic these days. Everybody is talking about plant growth promoting राइजोबैक्टीरिया। इसकी अभी हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या हैं। What are the plant growth promoting rhizobacteria? So these are the rhizospheric free living plant growth promoting bacteria that promote plant growth by root colonization, and due to their optimistic effect on plant growth and development. ठीक है, सो इनको फ्री लिविंग होते हैं, राइजोस्फीयर में मौजूद होते हैं और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बाय रूट कॉलोनाइजेशन। मीन रूट के ऊपर रहते हैं, जाके ऊपर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर रूट के अंदर चले जाएं तो फिर हम उनको एंडोफाइट्स कहते हैं। लेकिन जो राइजोस्फीयर में फ्री लिविंग होते हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कहते हैं, एंड दे हैव ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज राइजोस्फेरिक फ्री लिविंग plant growth promoting bacteria that promote plant growth by root colonization and due to their optimistic effect on plant growth. So इसमें बहुत सी किस्मों के बैक्टीरिया मौजूद हैं और आए दिन नए से नए बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। मिसाल के तौर पे ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सेरेशिया, बेसिलस, सूडोमोनास, बर्कहोल्डेरिया, एंटीरोबैक्टर, एरविनिया, क्लेब्सिला, बायरिंकिया, फ्लेवोबैक्टीरियम, and gluconocytobacter. So these are few examples, but every day the number or the types of plant growth promoting rhizobacteria is increasing. So PGPR, they survive on root exudates which contain proteins and polysaccharides. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि राइजोस्फीयर में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि हमने कहा था कि वहाँ पे फ्लुएंटली मौजूद होते हैं रूट एक्सुडेट्स जो फूड का काम करते हैं। सो प्लांट रूट्स PGPR survive on root exudates which contain proteins and polysaccharides which serve as food source for these bacteria. Rhizosphere, you know, हम already discuss कर चुके हैं, the zone surrounding the plant roots is called as rhizosphere. So, and you know, this is a region of maximum microbial activity due to why it is a zone of maximum microbial activity, because these are they have high microbial number. So rhizosphere में maximum microbial activity क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे microbial population ज़्यादा होती है, उनका नंबर ज़्यादा होता है,
एंड वहां पर रूट एक्सुडेट्स ज्यादा होते हैं, इनको फूड एफिशिएंटली मिलती है, सो इस वजह से ये ज्यादा एफिशिएंटली वहां पे काम कर रहे होते हैं. सो व्हाट आर द mechanisms of growth promotion? How they promote growth? What are the mechanisms? So there may be direct mechanisms or there may be indirect mechanisms of plant growth. कुछ डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं. सो डायरेक्ट मैकेनिज्म्स एंड इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स. डायरेक्ट मैकेनिज्म्स में कौन कौन से आएंगे? जैसे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये राइजोस्फीयर में जो इनसॉल्युबल फास्फोरस होती है, इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फास्फोरस, ये उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं. दे प्रोड्यूस एक्चुअली सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स जो क्या करते हैं, उसको फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं. देन फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन. दे प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स जो डायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. सो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म्स हैं. साइड्रोफोर प्रोडक्शन, आयरन की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए बढ़ा देते हैं. तो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? दोज इंक्लूड इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट पैथोजेंस. ठीक है, कि ये प्लांट पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देते. अब ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म हो गया. देन लोअरिंग ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एथिलीन. एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले कि जब पौधे को कोई भी स्ट्रेस मिलता है तो उसके जवाब में पौधा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे एथिलीन कहते हैं, कि गैसियस हार्मोन है. ये हार्मोन अगर तो लोअर कंसंट्रेशन में हो तो क्या होता है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है. लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो ये बजाय प्लांट ग्रोथ प्रमोट करने के ये प्लांट ग्रोथ को सुप्रेस करता है. तो जब कोई भी स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल साल्ट स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस के रिस्पांस में पौधा ज्यादा एथिलीन प्रोड्यूस करता है और वो एथिलीन प्लांट ग्रोथ को सुप्रेस करती है. तो these bacteria what they do is they have a specific mechanism जो अभी हम पढ़ेंगे आज. वो मैकेनिज्म वो बढ़ी हुई जो स्ट्रेस से बढ़ी हुई एथिलीन होती है उसको कम कर देती है. उस एथिलीन के कम होने की वजह से उसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लिहाजा प्लांट ग्रोथ प्रमोट हो जाती है. एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोडक्शन. कुछ जो पीजीपीआर हैं वो एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं. And those exopolysaccharide undergo decomposition, and when they undergo decomposition, they release certain nutrients, and those nutrients are taken up by the plant, so their growth improves. Nutrient uptake regulation. They regulate the uptake of nutrients. Then enhancing activity of antioxidant enzymes. You know, free oxygen radicals are harmful for the plants, so there are certain antioxidants एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं. सो कुछ जो पीजीपीआर हैं वो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. सो पीजीपीआर हम कह सकते हैं इस तरह से कि पीजीपीआर दे वर्क एज फाइटोस्टिमुलेटर्स जो प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, एज बायोफर्टिलाइजर्स, एज रूट कॉलोनाइजर्स, रूट्स पे कॉलोनाइज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं, डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे किसी स्ट्रेस की वजह से, जैसे मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से हाई एथिलीन प्रोड्यूस हुई, उस एथिलीन को कम कर देते हैं. सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ये पिक्चर जो कुछ मैंने कहा है उसकी सारे की इस चैप्टर की समरी है. सो अगर आप इसको समझ लेंगे तो समझ लें आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है. सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस.
ओके, सो ये देखें, ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है। ये हमने कहा है कि प्लांट रूट माइक्रोब्स के जो माइक्रोब्स मौजूद हैं प्लांट रूट के गिर्द, वो कौन कौन से हो सकते हैं? दोज में भी माइकोराइजी, दोज में भी राइजोबैक्टीरिया। आज हम राइजोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ओवरऑल मैकेनिज्म डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो अगर बेनिफिशियल हों तो हम उनको पीजीपीआर कहते हैं। एंडोफाइट्स भी हो सकते हैं, मैंने कहा था अगर वो रूट्स के अंदर चले जाएं तो उनको एंडोफाइट्स कहते हैं। सो ये स्लाइड आप समझ लें कि इस पूरे कोर्स की समरी है कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, how they affect the plant growth, what is the interaction between plant growth and the microorganisms. So mechanisms by bacteria. Bacteria कैसे plant growth को affect करते हैं? So they can produce exopolysaccharides, they can produce osmolytes जो salt conditions में help करते हैं उसको। अगर वो ज्यादा ऑस्मोलाइट्स प्रोड्यूस करता है तो सैलिनिटी की वजह से जो मॉइस्चर, उसकी सारा पानी बाहर आ जाता है, वो नहीं आता है, तो इट कैन मेंटेन द मॉइस्चर इनसाइड। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्टन यूजफुल एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, पी सॉल्युबलाइजेशन करते हैं और फाइटोहार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर द मैकेनिज्म्स बाय पीजीपीआर, ठीक है। और इसके मुकाबले में अगर हम माइकोराइजी की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन improve the phosphorus availability, they can improve water use efficiency, they can improve antioxidants, they can enhance root area, they can improve the defense system of the plant, and they can protect the plant from oxidative damage protection. So ये पीजीपीआर क्या करते हैं? ये पौधे ओवरऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में हैं वो पौधे को क्या करते हैं? दे कैन इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, दे कैन क्रिएट स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन द प्लांट्स, दे कैन बी हेल्पफुल इन फाइटोरेमिडिएशन कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो पौधा ज्यादा फाइटोरेमिडिएशन करता है कंपेयर्ड विद सोल प्लांट्स। They can improve the growth, they can increase the yield, and they can improve the health and protect the plant. So this is how what microorganisms may be present and how these microorganisms can be helpful for the, what are the mechanisms, how they improve the plant growth, right? ये एक और वही स्लाइड समझ लें आप है कि करते कैसे हैं ये। इसको मैं स्किप करना चाह रहा हूँ इस स्टेज पे, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए क्विकली आपको बता देता हूँ। हमने कहा था कि दो मैकेनिज्म होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मैकेनिज्म में पीजीपीआर क्या करते हैं जी? ये पहले तो हमने डिफाइन किया है पीजीपीआर को कि ये ग्रोथ इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म्स क्या हैं? डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट में क्या है? ग्रोथ स्टिमुलेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। सो ये कैसे ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं? थ्रू अननोन मेटाबोलाइट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोडक्शन। लोअरिंग ऑफ एथिलीन, ये एथिलीन मैं पहले बता चुका हूं कि एक हार्मोन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो प्लांट ग्रोथ सुप्रेस हो जाती है। और वो एथिलीन पौधे में कैसे बनती है? एक कंपाउंड है जिसको एसीसी कहते हैं, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये ज्यादा होगा तो एथिलीन ज्यादा बनेगी, और जब कोई भी स्ट्रेस आता है तो एसीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो ये जो बैक्टीरिया हैं पीजीपीआर, ये इस एसीसी को डिग्रेड कर देते हैं, लिहाजा ये एसीसी एथिलीन नहीं बनाता, लिहाजा एथिलीन के हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। They improve the nutrition. How they improve nutrition? By altering the rhizosphere. Rhizosphere को alter कर देते हैं, उसकी pH suitable कर देते हैं। Phosphate solubilization, iron chelations and hydrophores. This is how they improve nutrition.
अब इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स क्या है? सो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स ने उसमें देखें ये ग्रोथ कैसे एनहांस कर रहे हैं. दे एनहांस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस. कैसे? द प्रेजेंस ऑफ काइटिनेज एंजाइम. काइटिनेज रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करता है? यू नो द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन and generally the fungi are pathogens. So they produce such enzyme which produces chitinase enzyme. So the cell wall is destroyed. As a result, fungi is destroyed. So no disease. Antibiotic production. They produce antibiotics which suppress the growth of pathogens over there. Induce systemic resistance. You know कि ये सिस्टमिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं. अब अगर साल्ट स्ट्रेस हो तो वहां पे क्या करते हैं ये कि अब साल्ट स्ट्रेस है तो वहां पे सोडियम ज्यादा होगा, सोडियम की अपटेक ज्यादा हो जाएगी. आप में से ज्यादा सॉल्ट साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि साल्ट फैक्ट्री सॉल्ट में सोडियम अपटेक जब ज्यादा होती है तो स्पेसिफिक आयन इफेक्ट होता है और ऑस्मोलाइट इफेक्ट होता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे एनहांस करते हैं साल्ट फैक्ट्री सॉल्ट में? ये एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं. वो एक्सोपोलीसैकेराइड सोडियम की अपटेक नहीं होने देते, ये खुद रूट्स पे लग जाते हैं जाके, लिहाजा सोडियम की अपटेक कम हो जाती है, लिहाजा उसका नुकसान नहीं होता. रिड्यूस ऑस्मोटिक स्ट्रेस. पौधे के अंदर यू नो और सलिनिटी अगर हो तो यही होता है ना कि उसके बाहर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, मोर नेगेटिव होता है अगर बाहर साल्ट से ज्यादा हो, लिहाजा अंदर का सारा पानी बाहर आ जाता है. लिहाजा उसमें फिर पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर ऑस्मोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोलीन है, ग्लाइसिन बीटेन है, जिसकी वजह से अंदर भी नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, लिहाजा फिर अंदर का पानी बाहर नहीं आता है और पौधा सर्वाइव कर जाता है वहां पे. सो ये उन ऑस्मोलाइट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पीजीपीआर. देन रिड्यूस्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. मैंने कहा था पौधे में अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की तादाद ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो पौधे के लिए नुकसानदेह होती है, सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है. तो उनको कंट्रोल करने के लिए पौधे क्या करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीजीपीआर क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स जो उस फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. सो ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स. So these are the mechanisms how the plant growth promoting rhizobacteria, they improve the plant growth in a direct or indirect way. So अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जो शुरू में हमने बातें की थी, मैंने कहा था कि ये मैकेनिज्म हो सकते हैं कि ये फाइटो स्टिमुलेशन हो सकती है, फाइटो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ ताकि आपको टाइम मिले क्वेश्चंस के लिए. So you are welcome for questions. हाज़ी देख लो. Okay, anybody can unmute his mic, introduce himself, and then ask the question. सर ACC का पूछना था. ACC का क्या है? सर ये क्या चीज है, मतलब कौन सा एसिड है, क्या चीज आप बता रहे थे? जी ACC है, मैं दोबारा बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता से. 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये प्रीकर्सर है एथिलीन का. ACC स्टैंड्स फॉर 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. दोबारा रिपीट करता हूं, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. आगे जाके लिखा हुआ भी आएगा. ये कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा. होता कैसे है एक्चुअली, अभी ब्रीफली बता देता हूं. होता ये है कि जब पौधे को कोई भी स्ट्रेस आता है तो उस वक्त पौधा अपने अंदर ACC की प्रोडक्शन बढ़ाता है. उस ACC की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ACC ने चेंज होना होता है एथिलीन में. जब ACC की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो एथिलीन में चेंज हो जाता है. अब कुछ बैक्टीरिया में ये एबिलिटी होती है कि वो इस ACC को एथिलीन में नहीं चेंज होने देते
बल्कि इसको किसी और कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा किस कंपाउंड में चेंज करते हैं, इसी चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से जब ACC कम होती है तो फिर एथिलीन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और जब एथिलीन की प्रोडक्शन कम होती है तो उस वक्त फिर वो हार्मोन का काम करता है, वो ग्रोथ को सप्रेस नहीं करता है बल्कि प्रमोट करता है। क्लियर? यस सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। सर हमने जो पीछे रिलेशंस पढ़े हैं माइक्रोब्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी सर वो जो रिलेशंस पढ़े हैं हमने, वो जस्ट माइक्रोब्स के म्यूचुअल रिलेशंस की वजह से हम इनको नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैटेगराइज करते हैं, या इनका जो नेगेटिव रिलेशंस का जो नेट इफेक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है? जी जी, मैंने ये पूरी आपको एक कलर डायग्राम नहीं दिखाई, वो पॉजिटिव इफेक्ट ही तो मैंने दिखाए हैं आपको। मैंने वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट ही बताए हैं। वहां पे सिर्फ हमारा यहाँ पे जो मेजर पर्पस है वो तो पॉजिटिव इफेक्ट को स्टडी करना है कि हाउ बैक्टीरिया और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कैन बेनिफिट द प्लांट ग्रोथ। लेकिन बेनिफिट को डिस्कस करने से पहले हमने कहा कि ओवरऑल डिस्कस करें कि इंटरेक्शंस होती किस किस किस्म की हैं। हमने कहा कि ये तीनों किस्मों की हो सकती है, ना फायदेमंद ना नुकसानदेह, या सिर्फ फायदेमंद या सिर्फ नुकसानदेह। ये बातें हमने की थी, ठीक है। सो अब उसका मतलब अब देखें, हमने जो इंटरेक्शन स्टडी की है दो किस्मों की हैं। एक हमने की है प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की थी, हमने दूसरी चीजें की थी जैसे माइक्रोराइज दी थी। दूसरी हमने की है माइक्रोब इंटरेक्शंस, कि सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये ज़हन में रखें, हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एंटीऑक्सीडेंट का आपने बताया कि माइक्रोराइजी में ये मैकेनिज्म है इसका, एडवांस एंटीऑक्सीडेंट। हाँ जी, ये क्या होता है, इसकी समझ नहीं आई। मैंने बताया था बेटा कि रिएक्टिव फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये बेसिक सी चीज है। फ्री ऑक्सीजन के रेडिकल्स अगर मौजूद होते हैं ना किसी भी लिविंग में तो वो नुकसानदेह होते हैं। तो उन फ्री लिविंग जो ऑक्सीजन के रेडिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो आपको पता होगा ना कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये फलां प्लांट जो है इसकी एंटीऑक्सीडेंट स्पीशीज इफेक्ट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बंदा लेता है तो उसमें इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। सो वो जो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है सर ये फ्री ऑक्सीजन स्पीशीज हमेशा हार्मफुल होंगे प्लांट्स के लिए? जी रेडिकल्स में बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। ये अब प्योर फिजियोलॉजी आ गई है। मैंने फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की बात की है, मैंने फ्री ऑक्सीजन की बात नहीं की है। सो आप इसको थोड़ा देख लें, फिर उसके बाद डिटेल में चले जाएंगे, क्योंकि अभी ये हमारे कोर्स से थोड़ा बियॉन्ड हो जाएगा, ये आपके फिजियोलॉजी का प्योर टॉपिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस कोर्स के हिसाब से आप इतना समझ लें कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स नुकसानदेह होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट स्पीशीज जो हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये एबिलिटीज होती हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स लें ताकि आप में एजिंग इफेक्ट कम हो। ऐसी अब आजकल मेडिसिन भी आ गई हैं कि अब आजकल इम्यूनिटी प्रमोट करने के लिए, ये कोरोना के दिनों में वो कहते हैं ये एक टेबलेट आई है अल्ट्राथेराग्रान। ये अल्ट्राथेराग्रान है क्या है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ज्यादा, उसमें मल्टीविटामिन भी है और साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं।
ठीक है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हम बायो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सलाइन सॉइल में, जी तो हम सर कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसमें मतलब ये जो इफेक्ट आ रहा है या यील्ड बढ़ रही है वो बायो ये इसकी बैक्टीरिया की वजह से ही है? वो हम कंट्रोल प्लांट रखा होगा, हमने एक कंट्रोल प्लांट रखा होगा ना। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम एक प्लांट रखेंगे जिसमें वो बायो फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, और एक प्लांट रखेंगे जिसमें हम वो बायो फर्टिलाइजर डालेंगे। जी सर, मतलब अगर तो कॉलोनीज इफेक्ट वगैरह आएगा वो बायो फर्टिलाइजर की वजह से ही आएगा, उनको हम देख लेंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कॉलोनी वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं कि मतलब बैक्टीरिया की वजह से? यस, या प्रैक्टिकल में आपको शायद नवीद साहब करवाएं भी। इसमें ऐसे होता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपने बैक्टीरिया डाले हैं उन्हीं का इफेक्ट है या किसी और का है, तो उसमें फिर ये किया जाता है कि वो जो बैक्टीरिया आप डाल रहे होते हैं ना, उनकी लेबलिंग कर दी जाती है। उसको गस लेबलिंग कहते हैं, एक खास टेक्निक है। उन बैक्टीरिया की लेबलिंग कर दी जाती है और वो बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं, और बाद में वहां से सैंपल लेके तो उन बैक्टीरिया को चेक कर लिया जाता है। वो जो अगर जो आपने डाले थे अगर वही बैक्टीरिया हो तो उनका एक खास कलर होता है, उस कलर से आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वही वाले बैक्टीरिया हैं जो मैंने डाले थे। सही है। तो जो इफेक्ट आया है उनकी वजह से आया है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सिंपल तरीन टेक्निक मैंने आपको बताई है। ठीक, शुक्रिया। अच्छा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि ना यस्टरडे देयर वाज अ डीन्स कमेटी, और उसमें अब ये डिसाइड हुआ है कि अब ये करेंगे हम कि सब क्लासेस को 30% करेंगे। आई मीन टू से हम एक सेमेस्टर को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और इस तरह से आपको 4 हफ्तों के लिए कैंपस पे आना पड़ेगा। उन 4 हफ्तों में आपको मिड का कोर्स कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका मिड हो जाएगा और आपको फारग भेज दिया जाएगा असाइनमेंट्स देके घरों पे जाके फिर बाकी का पोर्शन ऑनलाइन होगा। सो सारी क्लासेस को ये डीन हजरात के जुम्मे लगा है। डीन हजरात अपनी अपनी फैकल्टी का स्केड्यूल बना के देंगे। कुछ फैकल्टीज वाले ऐसे करेंगे कि वो से ऐसे कहते हैं कि जी हम ये 2 हफ्ते या ये 4 हफ्ते जो हैं हम बुला लेते हैं पहले सेमेस्टर वालों को। पहले सेमेस्टर वाले सारे स्टूडेंट्स आएंगे, उनको हॉस्टल में जगह दे दी जाएगी, वो जिन्होंने ठहरना होगा ठहरेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए। आपको उन 2 महीने के लिए फीस पे करनी होगी बॉर्डर की, ठीक है। और उसके बाद आप फारग होके चले जाएंगे, अगले आ जाएंगे। उसी तरह से वो बॉर्डर की 2 महीने की फीस पे करेंगे, 2 महीने रहेंगे और फिर वो चले जाएंगे। सो पर्पस ये है कि अब खास तौर पे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो लोग पहले बिल्कुल नहीं आए यूनिवर्सिटी में, ताकि वो भी एक दफा यूनिवर्सिटी में एक्सपोज जरूर हों, और जो आपके प्रैक्टिकल का कोर्स है वो भी उसमें कोशिश की जाएगी कि कवर किया जाए, ठीक है। और इसमें वार्डन ऑफिस को ये ड्यूटी दी गई है कि जो आप लोगों ने कमरे ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इस दफा आपको पता है कि आप लोगों ने बॉर्डर की फीस जमा नहीं कराई, नॉन बॉर्डर फीस जमा करवाई है। सो एक दफा उन स्टूडेंट्स से वो कमरे, उन्हें एक नोटिस दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर अपने कमरे आप खाली कर दें, और उन कमरों में फिर जो सेमेस्टर बुलाया जाएगा उनको आइसोलेशन में, मतलब एक एक कमरे में एक एक बंदा करके, या अगर बड़ा कमरा है तो उसमें 2 या 3 बंदे करके उनको रखा जाएगा। सो वो सारी HEC ने कहा है कि आप 30% स्टूडेंट्स को एट ए टाइम बुला सकते हैं। तो उसी फार्मूले पे अमल करते हुए हम ये कर रहे हैं। तो अभी देखें इसकी क्या शेप बनती है। अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में, तो ज़हनी तौर पे इसके लिए आप तैयार हैं। बाकी आप लोग अभी घरों पे हैं, तो घरों में रहने का मकसद ये है कि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मास्क वगैरह यूज करें, खुद भी एहतियात करें, दूसरों को भी कहें एहतियात करने का, क्योंकि यू नो कि ये बहरहाल अभी अनफॉर्चुनेटली सेकंड सर्ज शुरू हो चुकी है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज ऑफ द अदर्स, your family members,
योर फ्रेंड्स, एवरीवन। और अगर जरूरत हो तो बाहर जाए, नहीं तो ना जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो हमारे एग्जाम्स हैं वो भी सर इसी टेक्निक के मुताबिक लिए जाएंगे? जी, मैंने कहा है इस टेक्निक से आपकी उमर साहब क्या मुराद है? सर मतलब कि सर थोड़े थोड़े बच्चे करके क्लास के पेपर लेंगे सर। जी ऐसे जो लोग, अब ये इस पे अभी फैसला हो रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ कि एक पूरी क्लास को बुला लिया जाए या उस क्लास के हिस्से किए जाए। ठीक है, अभी ये फैसला नहीं हो रहा कि मिसाल जैसे देता हूं कि पूरे 7वें सेमेस्टर सॉइल साइंस वाले कहेंगे 7वें सेमेस्टर वाले सारे बच्चे आ जाएं, वो आएंगे, मिड का कोर्स कवर करेंगे, मिड का पेपर लेंगे, उनको कहेंगे जी 4 हफ्ते में आपका ये कोर्स हो गया। टीचर उनको एक एक की बजाय 2-2 3-3 पीरियड लेंगे, लेके उसमें कवर करके उनको फारग करके घर भेज देंगे। मिड लेके मिड और क्विज वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह उस पोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, और बाय दैट टाइम वो ऑनलाइन शुरू हो, फिर अगले लोग आ जाएंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे, फिर अगले आ जाएंगे। जब तक फाइनल एग्जाम का टाइम आएगा उस वक्त तक हालात देख के फैसला किया जाएगा कि अब फाइनल कैसे लेना है। अभी फाइनल का कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मिड का अभी तक यही है कि जैसे जैसे इनको ग्रुप्स में लेके आया जाए तो इनको फारग करके भेजा जाए। अब कुछ फैकल्टीज ने ये प्रपोज किया है कि आप पूरी क्लास को बुला लें, जैसे एमएससी फर्स्ट है, एमएससी फर्स्ट पूरी को बुला लें। मतलब हम सॉइल साइंस वाले कहेंगे कि एमएससी फर्स्ट सारी आ जाए, ठीक है, हॉस्टलों में ठहरे, इनकी क्लास फिजिकली होगी। ठीक है, और फिजिकली क्लास के बाद इनके वो क्लब पीरियड ज्यादा होंगे ना, क्योंकि वो सारा कोर्स कवर करना होगा। तो कोर्स कवर करने के बाद मिड का एग्जाम लेके इनको फारग कर दिया जाए। अब आप घरों पे जाएं, अब आपका क्लास अगला पोर्शन जो है वो ऑनलाइन होगा। फिर दूसरों को बुला लिया जाए, फिर मतलब पहले सेमेस्टर के बाद फिर हम कहेंगे जी अब तीसरे वालों को बुला लेंगे, बल्कि तीसरे और पीएचडी वाले तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जी, और कोई बात? सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी करेंगी। सर वो हमारे साथ एक सोमालियन भी है, तो वो कह रहा था कि लेक्चर अगर इंग्लिश में डिलीवर कर दें आप। I have no objection. I am okay. मैंने को I'll try के मैं I'll try to cover it in English. No problem. Next time say I'll not speak in Urdu. I'll be speaking in English all the time. अगर हम had you told me it earlier, I would have already used only the English. That's why I asked even in the beginning. I asked you, do you think I need to translate? Nobody answered or replied to that question. Anyway, if there is some Somalian, I know that they can now understand English to some extent, but still I'll continue in English. There is no problem. Yes, any other question, suggestion, any other point? Okay, if you have no more question, then today your institute is celebrating World Smog, not World, rather Smog Awareness Day. So we are going to do that. For that purpose, there is going to be some lectures and some walk. So for that purpose, so I have to go there, and also your class is over. So take care of yourself. Okay, Allah Hafiz. Goodbye. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.